السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان فرید رئیس۔ آج شو کے آغاز میں آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں ملکی سیاست کی ایک اہم شخصیت مولانا فضل الرحمان صاحب سے، جو آج کل اپنے اتحاد سے کچھ ناراض دکھائی دیتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ۔ دیکھیے فرید، بات یہ ہے کہ جب آپ ایک اتحاد بناتے ہیں جی تو پھر ہر موومنٹ پہ، ہر جگہ، ہر مسئلے میں آپ کو اتحاد کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے، واہ، اور خاص طور پہ آپ اگر اس اتحاد کے سربراہ کو نظر انداز کر دیں گے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ناراضگی کی بات نہیں ہے، وہ غیر قانونی اور غیر آئینی رہ جاتی ہے۔ واہ 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 واہ۔ چونکہ کسی بھی قانون، قاعدے اور کسی آئین کے تحت ہی آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں یا اتحاد بناتے ہیں، تو یہ لوگ جو ادھر اکٹھے ہوئے ہیں دبئی میں، جی جی، یہ دونوں سربراہان ہمارے حضرت نون لیگ والے اور پیپلز پارٹی والے، جی جی ظاہر ہے یہ ادھر جس گفتگو کے لیے اکٹھے ہوئے تھے اس میں میری شمولیت نہ ہو تو یہ تو واقعی غصے والی بات ہے۔ تو آپ کو بلایا کیوں نہیں مولانا صاحب؟ بھائی یہ معلوم نہیں ہے۔ دیکھیے وہاں پہ اگر ان کی میٹنگ میں برج خلیفہ کی ہائٹ ڈسکس ہوئی ہوتی، یعنی یہ کتنا اونچا ہے، اگر انہوں نے اس موضوع پہ بات کی ہوتی، جی جی، یا دبئی کی جو ڈیزرٹ سفاری ہے وہاں پہ ریت کی گہرائی پہ اگر یہ گفتگو کر رہے ہوتے تو پھر ہمارا کیا لینا دینا۔ واہ، بہت اچھا۔ اور اگر یہ پاکستانی سیاست میں الیکشنوں میں آئندہ کے لائحہ عمل پہ گفتگو کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے تو پھر وہاں پہ اگر اس اتحاد کا سربراہ نہیں تھا واہ واہ، تو پھر اس میٹنگ کے اوپر غصہ کیسے نہیں آئے گا، واہ واہ، کیسے اس میں ناراض نہیں ہو گئے؟ بھائی یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ ہنڈیا کے اندر گوشت بھی ڈال دیں، جی، بوٹیاں ڈال دیں، یعنی پانی ڈال کے تو آپ پیاز، ادرک، لہسن، اپنا ٹماٹر، ہر چیز، گرم مسالہ، نمک، مرچ، ہلدی، گرم مسالہ، ہر چیز ڈال دیں، اور آپ چولہا جلائیں تو ہائے ہائے ہائے، تو کیسے ہنڈیا پکے گی؟ ہاں تو وہ تو کچا ہی رہ جائے گا سر۔ کچا رہ جائے گا، کچی بات نہیں کرو، ٹھہر جاؤ۔ جب انہوں نے کہہ دیا کہ کیسے پکے گا تو پھر کچا رہ بات ختم ہو گئی۔ بات ختم ہو گئی۔ تو چولہا جلائے بغیر آپ کس طرح یہ ہنڈیا چڑھا سکتے ہیں؟ ہائے تو اس لیے میں تو اس بات پہ ناراض ہوا کہ یہ بیکار کی ہنڈیا آپ نے کیوں چولہے پہ چڑھا دی، واہ، چونکہ اس ہنڈیا نے تو گلنا ہی نہیں ہے، پکنا ہی نہیں ہے، چونکہ چولہا تو جل نہیں رہا۔ ہائے ہائے ہائے، تو میں اس لیے تھوڑا ناراض ہوں ان لوگوں سے، مگر یہ مسائل جو ہے یہ حل ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ہمارے اندر کی بیٹھ کے کرنے والی باتیں ہیں۔ جی جی، جیسے کسی آرٹسٹ سے اگر آپ یہ پوچھیں جی جی، کہ آپ کتنی انکم ہے آپ کی، آپ شو کے یا ڈرامے کے یا فلم کے کتنے پیسے لیتے ہیں، پھر تو اکثر ہم نے سنا ہے ٹیلی ویژن کے اوپر کہ وہ کہہ دیتے ہیں کیوں آپ نے انکم ٹیکس والوں کے میرے پیچھے ڈالا۔ تو اسی طرح ہمارے پی ڈی ایم کے اتحاد کے حوالے سے جب ہمیں کوئی ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے یہ پوچھتا ہے کہ ناراضگی کس بات کی ہے تو ہم اس سے اوائڈ کرتے ہیں۔ بہت اچھے، آپ کی وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب سے بھی ابھی ملاقات ہوئی اسی تحفظات جی کے انہوں اوپر۔ نے تو آ کے تو فوراً اندر گھستے ہی شروع کر دیا، گانا شروع کر دیا، روٹے ہو تم کو کیسے بھولو پیو واہ واہ، مولانا مولانا۔ ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ، واہ، نیرا نور صاحبہ بھی یاد آ گئی۔ ارے ان کو گانے کا بڑا شوق ہے نا تو وہ ترنم میں شروع ہو گئے۔ تو پھر آپ مان گئے؟ نہیں پھر میں نے ان کے ترنم میں کہہ دیا نا میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ دیکھیے غلطی بہت بڑی ہے، یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ بارات لے کے تو لڑکی والوں کے گھر پہنچتے ہیں
تو ادھر جا کے دلہن والے کہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ تو آ گئے، دولہا کہاں ہے؟ دولہا گھر چھوڑ جائے، بارات بول جائے تو ادھر تو بڑی سچویشن خراب ہو جاتی ہے، بالکل صحیح شک و شبہات پڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جی یعنی مولانا صاحب آپ خود کو دلہا کہہ رہے ہیں؟ وہ یار مثال دے رہا ہوں، کیا کر رہے ہو؟ کسی نئے چکر میں نہ پھنسا دینا، میں نے تو مثال دی ہے، مثال کے طور پہ جیسے کہتے ہیں، جی 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 جیسے دولہے کے بغیر بارات کا لڑکی والوں کے گھر پہنچ جانا انتہائی شرمندگی والی بات ہے، اسی طرح بغیر سربراہ کے کسی اتحاد کی میٹنگ ہونا بڑی شرمندگی والی بات ہے۔ بالکل، آپ اپنے اتحاد کے کیپٹن ہیں اور کیپٹن تو ٹاس کرتا ہے تو میچ شروع ہوتا ہے۔ دیکھیں نا ماشاءاللہ کتنی اچھی مثال دی ہے قوری صاحب نے، یعنی ٹاس کرنے والا جو 5 روپے کا سکہ ہے وہ ہماری جیب میں ہے اور کھلاڑی گراؤنڈ میں پہنچ۔ مولانا صاحب ہو سکتا ہے انہوں نے درہم کے ساتھ ٹاس کر لیا ہو۔ یہ کیا دبئی کا اور سعودی عرب کا میچ تھا؟ ورانا ٹنگا، وہ مثال دے رہے ہیں، پھر آپ وہ بات کو ادھر عجیب انداز میں کر دیتے ہیں۔ چلے بہرحال مولانا صاحب، میاں نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب مدبر سیاستدان ہیں، اس مسئلے کو حل کر لیں گے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ۔ جی ہمیں بھی پتہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ ملاقات کیے بغیر لندن نہیں جائیں گے، انہوں نے یہ ہمیں بلایا ہے کہ آپ تشریف لائیے ادھر تو ملاقات آپ سے کرنی ہے، اور وہ نہیں جائیں گے لندن ہم سے ملے بغیر، بلکہ ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ انہوں نے اپنے سعودی عرب والے گھر کے سامنے فلم والا بورڈ بھی لگوا دیا ہے، لندن نہیں جاؤں گا، واہ 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 واہ، بہت اچھے۔ اور ہمایوں سعید کی جگہ انہوں نے اپنی فوٹو لگا دی۔ اچھا مولانا صاحب، ہمایوں سعید کی تو فوٹو لگی، مہوش حیات کی جگہ کس کی فوٹو لگے گی؟ تمہاری پوپی کی۔ جب ہمایوں سعید میں لافٹر آ گیا تو چھوڑ دو اس کو، ضرور تم نے نامحرم لوگوں کی ذکر کرنا، سیگمنٹ کے حساب سے بات کیا کر۔ تمہیں پتہ کہ اس وقت مولانا فضل الرحمان بیٹھے ہوئے، جی جی اس میں ضرور وہاں یاد گفتگو کرنی۔ ہائے مولانا صاحب، انہی باتوں سے میں آپ کا بڑا فین ہوں۔ انہی باتوں سے نہیں، جس وجہ سے تم میرے فین ہو وہ مجھے پتہ ہے۔ دیسی گھی کا حلوہ، اوپر پستہ بادام اور زعفران، اور روغنی نان کے ساتھ۔ اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے، اگست میں اسمبلیوں کی مدت پوری ہو رہی ہے، الیکشنز وقت پر ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے سیلاب کا خدشہ تو ہر سال ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ جو ہماری حکومت ہے اس نے بندے تو تعینات کر دی ہے کہ اگر ایسا کوئی اللہ نہ کرے حادثہ پیش آتا ہے تو اس کو فوری طور پہ سنبھالا جائے اور اس کا کوئی سودباب کیا۔ مولانا صاحب انہوں نے الیکشن کا پوچھا ہے کہ کب ہونا ہے، آپ اس سلاب کا بتائی جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ ماشاءاللہ انج پڑھ دے جی میں ہون لگے نا الیکشن۔ دیکھیں اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ الیکشن ٹائم پہ ہوں گے، واہ، کیونکہ یہ آئین کا حصہ ہے، یہ اللہ کے فضل سے الیکشن جو ہے وہ ٹائم پہ ہو گئے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ پارلیمنٹ کی گھڑی میں سے ہم سیل نکال دیں اور جب پھر سال 2 سال بعد الیکشن کروائے تو دوبارہ سیل ڈال دیا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ الیکشن ٹائم پہ ہو رہے ہیں۔ یعنی مولانا صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ الیکشن وقت پر ہوں گے چاہے اس میں تاخیر ہی کیوں نہ ہو جائے؟ بالکل ٹھیک بتایا آپ نے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ دیکھیے انشاءاللہ الیکشن ہو گئے، ہم چاہتے ہیں کہ سیل بھی بچ جائے اور گھڑی بھی نہ ٹوٹے۔ مولانا صاحب سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، یہ کہنا ہے؟ او بھائی اس وقت سانپ کی بات نہیں ہو رہی، پارلیمنٹ کی گھڑی کی بات ہو رہی۔ سیدھی بات ہے مولانا صاحب، الیکشن میں پی ٹی آئی آپ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، آپ گھبرا رہے ہیں۔ کس بات کا چیلنج ہے؟ کس بات سے گھبرا رہے ہیں؟ پی ٹی آئی ایک پلانٹڈ جماعت تھی جس کو اللہ کے فضل سے ہم نے ایسے نچوڑ دیا جیسے آپ
शो के बाद जूस लेके घर जाती है और हमारी बहू शापर में से जूस निचोड़ देती है। वाह वाह वाह। इसकी ना कोई पहले वैल्यू थी और ना इस वक्त कोई वैल्यू। ये तो खामखा अपने आप को आह बनाने के लिए ये क्रिकेट वाला लड़का शोर मचा रहा है। नहीं उसका नाम ओ भाई ये जो है आप देखें वर्ल्ड कप जो है वो भी सारा अपने जिम्मे ले लेता है। भाई जो 11 बंदे खेले थे वहां पे वो क्या ग्राउंड में घास लगा रहे थे तो अकेले ले आए वर्ल्ड कप। अब IMF ने कर्जा दिया तो कहते वो भी मैंने दिलवाया। ये तो ऐसे ही से चौधरी बनने का शौक है। हम समझते हैं कि इसकी हैसियत सियासत में मक्खी से ज्यादा नहीं है। जैसे मक्खी फजूल तंग कर रही होती है, कोई नुकसानदेह नहीं होती, इसी तरह ये सियासत में तंग कर रहा है। मगर ये याद रखो हमने इस सियासी मक्खी के ऊपर गलास उल्टा करके रख दिया। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। निकाह मुंडा ते कुड़ी छोटी मेरे कोल कमरे च लम्मे पै गए। अच्छा हले छुते नहीं संते बारिश नाल छत चोन लग पई। कुड़ी ने उठ के मारिए छाल, हाउस लीकिंग हाउस लीकिंग। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। आज हम बात करेंगे अपनी लापरवाहियों के हवाले से, और उसमें एक ख़तरनाक बात यह है कि हमें अपनी गलती का एहसास होता है लेकिन ज़रा देर बाद। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, बिस्मिल्लाह। जो करम मेरे आका ने मुझ पे किया। जी आए आइए आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अम्मा आ गई जी, आ गई। बिस्मिल्लाह वालेकुम सलाम। आ गए हो? जी अम्मा जी। हाँ जी। शुक्र है शुक्र है। आज बड़े खुश हो माँ जी। पुत्र खुश ही रहना चाहिए। हर हाल च रब कोलों खुश ही रहना चाहिए। बेशक ये जेड़ियां नाराजगियां रोसे दे ये तो आपस में इंसानों में है ना। रब दा ते हर हाल च शुक्र ही करने, सही कहा अम्मा। ओदे कोलों ते खुश ही रहना है। माँ जी, अल्लाह ताला से तो हर हाल में खुश रहना ही है, मगर हमने देखा है कि आप तो इंसानों से भी खुश रहती हैं। पुत्र इंसाना कोलों भी राजी रवो ते जिंदगी अपनी सोनी हो जाती। क्या कहने। ओ कादे गिले ते कादे शिकवे। आदत पै गई है सानू हर एक नल गिला करन दी, हर एक नल लड़न झगड़न दी। सही। ते मैं ते खुश ही रहनी आ। पुत्र उत्थे होन बाहर तां भी खुश, ते इत्थे आ जान ते तां भी खुश। माँ जी लगता है आपका कोई बेटा आया हुआ है। आहो अच्छा जी। अमेरिका वाला आया है। त्रै चार दिन हो गए ने। और बच्चे भी ले आए ना। शुक्र है शुक्र है। अम्मा उसको भी लाइए, हमसे मिलवाइए। लेकर नहीं गे बाहर सौरे आल। सुनाती है ठीक है। हाँ जी माँ जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह हलाल। का शुक्र। आप सुनाएं। अल्लाह करम करे पुत्र, जी गोत करे करवाल चढ़ जाए। हाँ माँ जी, सीख रही हूँ करना अभी। मुंडा मेरा गे है अपने साले आल। अच्छा उसका भाई रहता है ना इधर एक मेरी बहू का। अच्छा अच्छा। और बहू मेरी जो है वो तो अमेरिका में ही होती है। अम्मा जी तशरीफ रखे ना। मैं दूध लेन चली सा। हला चलो 2 मिनट साल लेनी। अच्छा शुक्र अच्छा। गल ही कर लो साडी। मैं पुत्र आखन दई सा मुंडे नू जी मैं क्या छेती आ जावी इन्नी देर बाद आए। मां दिया अखां नू ठंड पै गई। हाय। अम्मा जी अमेरिका तो आके भी सौरे वाली जाना पैंदा पहले। हाय। चलो पुत्र कोई गल नहीं। नू मेरी जो है
उसको भी तो दिल करता है ना रिश्तेदारों से मिलने को। ओह बच्चों को भी साथ लेके गए। अच्छा इतने बड़े हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, मैं तो बिल्कुल छोटे छोटे देखे हुए। अब तो आया 11 साल बाद। अब कह रहा था माफी करना करो, अब मैं इधर ही आ गया हूँ, अच्छा इधर ही रहूंगा मैं। पर बच्चे उसके आगे से बहस करते हैं। क्यों अम्मा? बस पुत्र उधर जो रहे हुए हैं, अमेरिका ही जम्मे पले, हाँ बच्चों को इधर लाया ही नहीं। जबकि लाना चाहिए था अम्मा उनको, बच्चों को। 11 साल बाद आया है। तो बच्चे अब बड़े बड़े हैं। माशाल्लाह 12 साल दा ते मुंडा सू अच्छा अच्छा बड़ा, वो निका 9 साल दा। अच्छा कुड़ी माशाल्लाह कितनी बड़ी हुई है, कोठे जिद्दी माशाल्लाह माशाल्लाह। कद निकाल लिया उसने। तो अम्मा आपका दिल लग गया इधर? नहीं पुत्र इतने पैदाश नहीं है। अच्छा वो बच्चे कहते हैं माँ को कि हमने नहीं इधर रहना। अच्छा तो बाप लड़ता है, कहता है दादी इधर है। तो बच्चे बड़े तेज हैं आजकल के। वो कहते हैं दादी अकेली है, इसको उधर ले चलो। हाँ तो माँ जी आप चले जाए उनके पास। मैंने उनको कहा है पुत्र मैनू अंग्रेजी नहीं आती, हाय मैं उधर दूध लेने जाऊंगी तो मैं क्या कहूंगी। तो आगे से वो बच्ची कहती है मिल्क कहो। उसने कल सारा दिन लगा के मुझे मिल्क याद कराया है। मैं अभी मिल्क लेने जा रही हूँ। वाह जी वाह। ये पुत्र जो होती है ना माँ बाप, जी जी ये उनको चाहिए। जब बच्चे पैदा हुए हैं तो उनको दादी बखाओ तो उनको याद रहेगा ना ये दादी है। साली 2 साली उनको इधर लाओ, हाँ उनको आदत पड़े, उनको पता चले ये हमारा मुल्क है। उनको भी यहाँ के मसाइल के बारे में आगाही हो कि यहाँ किस तरह के मसाइल हैं। वो तो मिसाइल भी एडे खतरनाक। अब देखो ना जरा, इतने ते बारिशां होने लग पैन ते स्यापा पै जाता है। पहले कह रहा था मैं इनको होटल में रख लेता हूँ, मैं क्या कादे ले हाय इन्नी देर बाद ले आया ते इत्थे मेरे कोल रवो। निक्का मुंडा ते कुड़ी छोटी मेरे कोल कमरे च लम्मे पै गए। अच्छा हले छुट्टे नहीं सन ते बारिश नाल छत चोन लग पई। कुड़ी ने उठ के मारिए छाल, हाउस लीकिंग हाउस लीकिंग। प्यो दांदे कहन दई ये मकान चोन लग पिया है। मैं क्या ले फाड़, मैं क्या उन्होंने इत्थे रखदा उस वेंदे प्यो किस तरह बारिश च डड्डू फड़दा फिरदा। इत्थे जो निक्के निक्के सन नाल वाली गली च पानी खलोना ते ना मरादा ने उन्होंने तलाब बना लेना। वो उत्थे तैरदे हुंदे सन, ट्यूबां लैके अपड़ जांदे। किसे दा कच्चा नहांदियां ही लै गया ते किसे दा कच्चा पानी च लब्भन ही नहीं दे। इन्ना बालियां नूं की पता होवे जेड़े रहे ही अमरीका ने इत्थे बारिशां च की हुंदा है। अम्मा जी ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਬਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਡਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਖਲੋਈਦਾ ਨਾ ਥੈਲਾ ਮੰਜੀ ਪੁੱਠੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦਾ ਪਾਣੀ ਲੰਘਾਉਣ ਦੇ। ਅੰਮਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਤੇਜ਼ ਸਕੂਟਰ ਜਾਣ ਕੇ ਨਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖੀ ਟਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਤਿਤਲੀ ਬਣਦੀ। और साढ़े बच्चे ने बारिश के पानी च शलवार च हवा भर के ते उन्होंने लाइफ जैकेट बना लेंदे ने। अम्मा मैं ते बारिश दे पानी दे विच मੱਝ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਝੂਠੇ ਲੈਣਾ। मझ भी यो ही समझदी है कि बैरी जहाज लैके जान दी। ਅੰਮਾ ਜੀ ਗੋਗਾ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਮਸਾਇਆ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਕੌੜੇ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ।
नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। मैं देखता हूँ आप कैसे रोकते हैं मुझे अपने हाल में शादी करने से। मेरी पूरी बरादरी को पता है कि मुमताज हाल में शादी होनी है, कार्ड छप गए हैं। ओ भाई इसमें मेरा क्या कसूर है, गवर्नमेंट सील कर रही है। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। एक खबर के मुताबिक कराची में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने शादी हॉल्स के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर रखा है, जिससे शादी हॉल्स जो मालिकान हैं वो सरापा एहतजाज हैं, मगर दूसरी तरफ जिन लोगों ने अपनी बुकिंग्स कराई हुई हैं वो सख्त परेशान हैं। और भाईजान मैंने इसलिए नहीं एडवांस दिया था कि टाइम पर आकर मुझे आप नई स्टोरी सुनाएं। ओ भैया मैं कोई फिल्म की स्टोरी नहीं बता रहा, ये हकीकत है कि गवर्नमेंट ने जनाब हुक्म जारी कर दिया है कि शादी हाल सील कर दिए जाएंगे, और अगर ना किए तो वो विस्मार कर देंगे। हमने तो एहतियातन अपना तमाम सामान उठाया है कहीं हमारा नुकसान ना हो जाए। मैं शादी कहाँ करूं? देखिए मैं इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता। अगर चार दीवारी बच गई तो आप आकर वहां शादी कर सकते हैं, लेकिन एक बात की एहतियात कीजिएगा, गर्म कपड़े ना पहनिएगा क्योंकि एसी नहीं चल रहा। वो एसी नहीं चलना तो मैं कच्छा पहन के आऊं। देखो भाई मेरे, कच्छा पहनो या ना पहनो मगर जॉगर जरूर पहनना, अगर छापा पड़ गया तो आपको भागना भी पड़ सकता है। नहीं तो आपने अपनी शादी के लिए इनका हाल बुक करवाया था, और आपकी शादी के लिए करा था। तो ये तो अच्छा हो गया, ये हुक्म आ गया, बच्ची की किस्मत अच्छी हो जाएगी। और भाई क्या कह रहे हो, मुझे लड़की वाले गाड़ी दे रहे हैं? गाड़ी दे रहे हैं या गाड़ी के नीचे दे रहे हैं? क्रोला क्रोला। उसमें बिरयानी बेचोगे? और तुम चुप करो, देखो पे बैठने वाले फुफड़। भाईजान मैं देखता हूँ मेरी शादी को आप कैसे रोकते हैं। मैंने एडवांस दिया हुआ है आपको, जब एडवांस देने आता तब तो बड़ी बोतल पिला रहे थे मुझे। फरीद साहब पहले ही बड़ी मुश्किल से अरेंजमेंट हुआ है, 8 साल से हर साल शादी आगे हो जाती थी। कभी वो लड़की वाले कहते थे बच्चों के इम्तिहान है, कभी वो कह देते थे हमारे बुजुर्ग हज पे गए हैं, हज करने गए हैं, कभी वो कह देते थे बहुत गर्मी है बच्चों को पित्त निकली हुई है, कभी वो कह देते थे बहुत सर्दी है धुंध फैली हुई है। मैं इतनी मुश्किल से शादी, फरीद साहब मेरा बड़ा जितने भी वो बहाने लगा रहे थे ना, दरअसल वो अपनी बच्ची सेव कर रहे थे। क्या कह रहे हैं आप? बच्ची सेव कर रहे थे? मैंने क्या खुद कुछ जैकेट पहनी हुई है? एहतियातन। मैं देखता हूं आप कैसे रोकते हैं मुझे अपने हाल में शादी करने से। मेरी पूरी बरादरी को पता है कि मुमताज हाल में शादी होनी है, कार्ड छप गए हैं। ओ भाई इसमें मेरा क्या कसूर है, गवर्नमेंट भाई सील कर रही सारा है। कसूर ही तुम्हारा है। हुकूमत पे मुद्दा ना डालो। जब तुम गैर कानूनी जगह पर शादी हॉल बनाते हो, जब रफाई प्लाटों के ऊपर ये शादी हॉल की तामीर करते हो, फिर उसके बाद लाखों रुपए लोगों से एडवांस की मद में लेते हो, तब तुम्हें ये नहीं पता कि तुमने गैर कानूनी काम किया हुआ है। हुकूमत की क्या गलती है इसमें? यार तुमने जरूर इसके हाल में करनी है, तुम वैसे हर हाल में करो शादी, मगर इसके हाल में ना करो। एडवांस इनको दिया है, पैसे दिए इनको, एडवांस इससे वापस लो। तो कहां से दे भाई, आगे नुकसान मेरा इतना हो गया, मैं एडवांस कहां से वापस दे दूं? कितना एडवांस था? 4 लाख टोटल 8 लाख में बात हुई थी, तो आप लाख रुपए एडवांस ले रहे, 2 कह रहे 4 लाख पहले दे तो 4 लाख बाद में देना। अच्छा तो भाई मेरे, हम तो सारे पैसे इकट्ठे लेते हैं, ये तो आपके मुकद्दर अच्छे हैं कि हमने आधे ले लिए, हमने कहा चलो आधे बाद में ले लेंगे। आप हार ही पहन के फिर रहे हैं, मुझे लग रहा है इसी हफ्ते में है शादी। और भाईजान ये फड्डा जो पड़ गया, इसलिए मैंने पहले ही तैयार शहर हो के हाथ डाल के फिरता हूँ कि कहीं टाइम ही ना मिले। नहीं वैसे अब उसने हार पहन लिया हुआ, अब शादी तो होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, उसका एडवांस उसे वापस मिलना चाहिए ताकि वो अपनी शादी कहीं और अरेंज करे। तो भाई कहां से एडवांस वापस करूं, हम कारोबारी लोग हैं, कारोबार में लग जाता है। यार जब तुम्हें पता है कि कई महीनों से ये खबर गर्दिश कर रही है कि ये शादी हाल नजायज जगहों पे बने हुए हैं, सील हो जाएंगे, गिरा देंगे, तो तुमने क्यों उससे पैसे पकड़े? शुक्र है आपने भी कोई सही बात की। उस बेचारे ने पता नहीं कितनी मेहनत से पैसे इकट्ठे किए हुए। बिल्कुल जी, मनोड़े जो सिक्का फेंकते हैं समंदर में वो निकाल के लाता है। ओए समंदर की सबसे गरीब मछली,
मैं सिक्का निकाल के लाता हूँ, कोई फ्रॉड नहीं करता, मेहनत करता हूँ। सर वैसे हमारी गवर्नमेंट को कोई भी कदम उठाने से पहले कुछ प्लान कर लेना चाहिए ताकि हमारी आवाम को कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, और ये सारी चीजें जो हैं रातों रात नहीं बन जाती हैं। हाँ जी। और अगर किसी की इस तरफ नजर चली गई है कि ये तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए, तो फिर रातों रात इसे मिसमार नहीं करना चाहिए, बल्कि थोड़ा सा वक्त देना चाहिए ताकि वो लोग जो इससे बराह रास्त मुतासर हो रहे हैं वो बच जाए। बिल्कुल ऐसा वैसा मुतासर हुआ मैं फरीद साहब, कीनिया से मेरी फुफो आ रही है मेरी शादी अटेंड करने के लिए। वाह। यार तो रोक दो उन्हें। रोक दो, वो 4 दिन हो गए निकला है। 4 दिन से कीनिया से निकले हुए। हाँ जी, वो पैदल आ रहे हैं ना। पैदल क्यों आ रहे हैं भाई? गरीब लोग बेचारे। हाय। और नहीं भाई जी, गरीब नहीं है वो, उन्होंने मन्नत मानी हुई थी कि इस बच्चे की जब शादी होगी तो हम पैदल आएंगे। वाह 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 वाह। 1 महीने में तो मेन्यू डिसाइड हुआ जी। अच्छा जी, क्यों बारात मिट्टी खाती थी? और नहीं जी, इस शख्स की वजह से हुआ सारा काम खराब। कभी ये कहता था बीफ कर लो, कभी कहता था मटन कर लो, फिर कहता जी मटन बड़ा महंगा है चिकन कर लो, फिर कहता चिकन मिल नहीं रहा अपना बीफ कर लो, ये ऐसे करता था। नहीं तो अब क्या मेन्यू डिसाइड हुआ है? अब ये डिसाइड हुआ कि केलों के पत्तों पर सफेद चावल और ऊपर राजमा। वाह वाह वाह, मेहमान तमिलनाडु से आ रहे हैं। और नहीं जी, मैंने कहा जरा डिफरेंट हो जाएगा, जरा वैसा यार तुम दूल्हा बने हुए, इससे डिफरेंट और क्या होना था? यही इन्हीं बातों से मेरी शादी को नजर लगी है। दूल्हा भाई स्वीट डिश में क्या दे रहे हैं? ओ यार जिस तरह का मेन्यू है स्वीट डिश 4-4 जामनू देंगे। और काली जुबान वाले क्यों मेरी सारी बरात की जुबानें काली करने लगे हो? सही कह रहे हैं, आपको अकल का रही यार। जामनू कौन सी स्वीट डिश है? हाँ। बारात वाले कहें भाई जी अभी स्वीट डिश नहीं आई, दूल्हे का अब्बा कहे जी वो स्वीट डिश के ऊपर नमक लगा रहे हैं। ये तो नमकीन हो गई, स्वीट डिश कहां से रही? फरीद भाई, दूल्हा भी तो लूना मिठाई है। यार तुम्हारा मसला हल करते हैं, पहले मैं एक ब्रेक ले लूं। नहीं जी नहीं, ब्रेक नहीं होगी, पहले शादी होगी। फंड का इश्तेहार दे रहे हैं, आए हमसे मदद ले लें, हम आपकी मदद करेंगे। उधर आए जरा हमारे क्लर्कों से आके निबड़े। आपकी एप्लीकेशन अगर एक्सेप्ट हो गई फिर आपको हम चेक देंगे मदद का। हाय। यार फरीद सियाना साहब, जनाब, किसी लिए बड़ा दुख होता है कि सोचने वाले जो हैं वो क्यों इतनी खुद गर्जी से सोचते हैं। जब आप अल्लाह ताला के नवाजे हुए हैं और आपके पास बहुत सी ऐसी दूसरी ताकतें हैं अल्लाह ने अनायत की हुई कि आप कोई और अच्छा तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, तो फिर आप क्यों महदूद और कंजस्टेड से जहन के साथ सोचते हैं? अजीजी हुआ क्या, बात क्या है? कल अखबार में एक इश्तिहार देखा है जी। मैंने, बल्कि उसकी ये फोटो कापी ही करा ली। अच्छा। हमारे फनकार सरमाया इफ्तिखार, हुकूमत पंजाब की जानिब से फनकारों की खिदमात के एतराफ़ और उनकी समाजी व मुआशी सरपरस्ती के लिए आर्टिस्ट सपोर्ट फंड दर्जा झैल शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले सूबा भर के फनकारों से दरख्वास्तें मतलूब। और नीचे फिल्म, टीवी, रेडियो, ये वो, अहलियत 25 साल तजर्बा हो, ज़ाती आमदनी महाना 35,000 रुपए से कम हो। मैं ये समझता हूँ, कहना मैं ये चाहता हूँ कि शायद क्यों नेगेटिव ही सोचे, शायद किसी ने अच्छी सोच के साथ ही ये मंसूबा बनाया हो जी। मगर मेरी जो नाकस राय है या मेरी जो कह लें कि खुददारी कह लें, एक हर आर्टिस्ट खुददार है जी। खुददारी भी एक उसके अंदर है। बिल्कुल। मैं ये समझता हूँ कि इसकी बजाय कोई अच्छा रास्ता निकालना चाहिए था। अगर आपको आर्टिस्ट के पेट का या आर्टिस्ट के घर की हंडिया का चूल्हे का ख्याल आया ही है तो कोई ऐसा रास्ता निकाल लें जिससे आर्टिस्ट की खुद ही भी मजरू ना हो। ठीक है ना जी। देखो मैं यहाँ फिर ये कह रहा हूँ कि मुझे हुकूमत की नेक नीयति पे कोई शक नहीं है और ना ही करना चाहिए। हम लोगों ने बुरा सोचना ही शुरू कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि जैसे हम IMF के आदी हुए हैं
इसी तरह क्या हम बाकी कौम को भी उसी रास्ते पे लगाना चाहते हैं? बात तो दुरुस्त है मेरा मतलब है हुकूमत को मदद मांग कर निज़ाम चलाने का ऐसा चस्का सा लग गया हुआ है कि वो सोचते हैं कि बाकी जो यहाँ पे ऐसी जगहें हैं जहाँ पे कसम पुरसी की हालत है वहाँ बस मदद कर दें, खैर है। वो खुदा के वास्ते जो हुक्मरान होते हैं वो सबसे पहले अपना सिस्टम दुरुस्त करते हैं। भाई आप ऐसा सिस्टम क्यों नहीं वज़ा करते जिससे आर्टिस्ट को सपोर्ट फंड की ज़रूरत ही ना पेश आए? आप उनके लिए ये जो कॉपी राइट्स का एक्ट है वो कब से डिस्कस हो रहा है, इसे फौरी तौर पे बनाएं, लागू करें इसे। ड्राफ्ट कर लिया गया इसको यार अगले दिन से आपको नताइज सामने नजर आने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। ये कॉपी राइट्स का जो कानून है ये इतना अहम है। आप जाके देखें इंडिया में, हॉलीवुड में पूरी जिंदगी में एक ही काम किया हुआ और सारी जिंदगी कॉपी राइट्स के कानून के तहत उनको उसके पैसे मिल रहे हैं और वो खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, फिर बहुत से ऐसे फनकार हैं जो बेचारे मेरे जैसे कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो ये सोशल मीडिया के सही इस्तेमाल से वाकिफ नहीं है। अब तो सोशल मीडिया के थ्रू जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बड़े खूबसूरत और बड़े अच्छे पैसे कमा रहे हैं। हाँ जी। उसके हवाले से कोई आर्टिस्टों की मदद करें, ट्रेनिंग दे दे उनको, एजुकेट करें ऐसा कि वो ये काम इज्जत के साथ कर सके। फिर आप देखें कि फिल्म इंडस्ट्री जो कई सालों से चीख रही है और उसका सत्यानाश हो गया है, उस हवाले से यार को कवानीन मीटिंगें आप कर देते हैं और आर्टिस्ट भी ऐसे भोले हैं कि निरा उनके साथ मीटिंग करके खुश हो जाते हैं, चाय पी के निकल जाते हैं। भाई क्या इसका रिजल्ट क्या निकला है? मैं कोई 30-35 साल से इन आर्ट्स काउंसिलों की मीटिंगों में जाता रहता हूँ, अब तो नहीं जाता, जी जी। बदल हो गया इतना सख्त। ये जो कमेटियां बनाई होती हैं इन्होंने, ये एग्जेक्टिव कमेटी और गवर्निंग बॉडी और ये वो, कुछ नहीं होता वहां पे माँ सिवाय चाय का कोफ पीने के और माँ सिवाय अफसरों की बात मानने के। आर्टिस्ट की कोई ना बात वहां सुनता है ना उसका कोई हल निकलता है। भाई कॉपी राइट्स के कवानीन बनाएं, आप फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से कवानीन बनाएं, उनको कोई टैक्स फ्री चीज़ें जो हैं वो शामिल करें उनके कवानीन में। उनको कोई लोन वगैरह अगर वो लेना चाहे, कोई फिल्म साज या कोई ऐसे अदारे जो हैं वो, या प्रोडक्शन हाउसेस जो हैं, उनको कोई इस तरह के लोन जो हैं वो मिलने चाहिए कि वो अपना प्रोडक्शन हाउस मजबूत से मजबूत तर करे। अभी तक तो ये फिल्म जो है हमारी एडिटिंग के लिए बाहर के मुल्कों में जाती है, अभी तक इतने जदीद दौर में, और जहाँ पे टेक्नोलॉजी है वो इंतहाई मस्कीन मुल्कों में भी पहुंच चुकी है। फिर टेक्नोलॉजी मुहैया करें, इधर पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को टेक्नोलॉजी मुहैया करें, ये इक्विपमेंट्स जो हैं उस हवाले से उनकी मदद करें, को टैक्स फ्री करें, ये वो। हाँ जी। जैसे ज़रूरत है उन चीज़ों की, उसके बगैर अब आप चल नहीं सकते आगे। जबकि ग्लोबल विलेज बन चुकी है पूरी दुनिया, बाहर की हॉलीवुड की, बॉलीवुड की फिल्में कंपटीशन में हमारे सामने हैं। तो उसमें अगर हमारी फिल्म में जान ही नहीं होगी पुराने इक्विपमेंट पे, और बेचारे दूसरों के मुल्कों में जा के एडिटिंगें करा के, म्यूजिक करा के, चूंकि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, वहां से लेके आते हैं तो प्रोडक्शन कहीं की कहीं पहुंच जाती है, और क्वालिटी फिर भी वो नहीं होती जो उन लोगों के पास टेक्नोलॉजी है जो उसमें होती है। यही हालत टेलीविजन ड्रामा के अंदर है। भाई आप फंड दे रहे हैं, आपने पीटीवी की हालत नहीं देखी हुई, कितना बड़ा अदारा है। और आज भी मैं ये कहता हूँ, हम वहाँ की पैदाइश हैं, हमने पीटीवी के अंदर आर्टिस्ट, हम जो हैं मेरी उम्र के, हमारे तो आर्ट की पैदाइश ही उधर हुई है ना जी, हम लोग तो उधर ही काम करते रहे। हमें पता है कि ये कितना बड़ा अदारा था और क्या इसकी शान थी, किस तरह हिंदुस्तान से भी जहाँ पे एंटीना हमारा ड्रामा खींचता था, लोग किस तरह आशिक थे उस ड्रामों के। वो कहाँ गया है? आपने बिजली के बिल में टेलीविजन की फीस लगा दी हुई है, आप वहां से पैसे इकट्ठे करते हैं, वो आप तक तो पहुंच जाते हैं, टेलीविजन के मुलाजमीन को तो तनख्वाहें मिल जाती हैं। आर्टिस्ट बेचारा जिसने पीटीवी का नाम बनाया था वो किधर खज्जल हो रहा है? आप उसको फंड दे रहे हैं, ये कर रहे हैं आप कारनामा। फिर आप आर्ट्स काउंसिलों की तरफ आ जाए, खुदा की कसम बेड़ा गर्क कर दिया आर्ट्स काउंसिल। यार सारी आर्ट्स काउंसिल जो थी वो बड़े बड़े नामवर
آرٹسٹوں کے انڈر چلتی تھی. بہت بہت بڑے نام اندر بیٹھے ہوتے تھے. یہ تو شروع ہوا ہے صوفی تبسم صاحب سے معاملہ. صوفی تبسم صاحب, فیض احمد فیض صاحب, ڈاکٹر انور سجاد, نعیم طاہر, رشید عمر تھانوی, پتہ نہیں کون کون سا بڑا آدمی جو تھا وہ ان کے ہاتھوں میں تھے یہ ادارے. اور اب آپ کو کہیں کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آئے گا جس کا کوئی آرٹ سے تعلق ہو. انڈیویجول ایک ایک بندے کو نواز رہے ہیں کہ یہ میرا واقف ہے, یہ ہماری پارٹی کا ہے, یہ ہمارا پسندیدہ ہے. اور آرٹس کونسلیں کدھر گئی ہیں؟ آپ کو یہ حیرانگی ہوگی سن کے کہ الحمراء جو پاکستان کی سب سے مہنگی سڑک پہ کتنی کنال گھیرے ہوئے ہے, وہاں پہ جو کچھ ٹوٹا پھوٹا ڈرامہ ہوتا ہے وہ بھی اب اس لیے اس کا بیڑا غرق ہو رہا ہے کہ چھتیں چو رہی ہیں. چھتیں چو رہی ہیں. بالکل سر. ایمان سے کئی دفعہ میں نے سنا ہے لڑکوں سے کہ شو کینسل ہو گیا جی, کیا ہوا جی, وہ چھت ٹپکتی ہے. چھت الحمراء کی جی المیہ ہے یہ. شو کینسل ہو گیا. پھر آپ دیکھیں ملتان آرٹس کونسل, فیصل آباد آرٹس کونسل, پنڈی آرٹس کونسل, اکاڑا آرٹس, بہت بہت بڑے ہال اسی طرح الحمراء جیسے بنے ہوئے ہیں. خالی اتنا اتنا موٹا چوہا بیچ میں پھر رہا ہے, اتنا اتنا موٹا. ارے یہ فنڈ کا اشتہار دے رہے ہیں, آئے ہم سے مدد لے لیں, ہم آپ کی مدد کریں گے, ادھر آئیں, ذرا ہمارے کلرکوں سے آ کے نبڑیں, آپ کی اپلیکیشن اگر ایکسیپٹ ہو گئی پھر آپ کو ہم چیک دیں گے مدد کا. عزیزی یہ درخواستیں بھی تو انہی ٹپکتی ہوئی آرٹس کونسلوں کے ذریعے لی جا رہی ہیں. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. جانے سے پہلے ایک خوبصورت بات. معروف قلمکار طارق بلوچ صحرائی لکھتے ہیں, قلم اور کتاب سے گریزاں قومیں بازیگر کا تماشا دیکھنے والا ہجوم بن جایا کرتی ہیں. اپنے میزبان فرید رئیس کو اجازت دیجیے, کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.